Good morning to all my dear students. In the previous class, we have discussed question number 1 to question number 5 from exercise 9C. Now in this exercise, we will discuss after from question number 6. Now see question number 6. In this question, it is said if a number is triplet, the result is increased by 5. We get 50. ध्यान देंगे. If the number is triplet, let the number be x. ट्रिपलेट मीन्स 3 टाइम्स, तिगुना, यानी नंबर को जब तिगुना करेंगे और इसमें 5 ऐड करेंगे तो 50 हमें मिलेगा. ठीक है, यानी कि जब x जो हम नंबर माने हैं वो x को तिगुना यानी ट्रिपलेट करेंगे और इंक्रीज करेंगे बाय 5, वी विल गेट 15. 3x plus 5 we will get 50 according to this question. Okay, so 3x plus 5 is equal to 50. When 5 will go that side, plus 5 will change into minus 5. 3x is equal to 50 minus 5. 3x is equal to 45. 3 is multiplied here with x. So 3, when we will displace 3 to that side, that will be divided by 45. Divide the 45. So x is equal to 45 by 3, that is 15. Thus the required number is 15. Clear? Now come to question number 7. See, in this question, it is said that find two numbers such that one of them exceeds the other by 18. Let one of the number be x. The other number will be exceeds by that by 18. Means number x, पहला एक नंबर माने x, तो दूसरा नंबर x से 18 ज़्यादा होगा. ठीक है. If one of the number be x, then other number will be x plus 18. यहाँ कह रहा है कि दूसरा नंबर पहला नंबर से 18 ज़्यादा है. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज x, then another number will be x plus 18. Now and their sum is 92. और ये दोनों को जोड़ने के बाद ये वन नंबर x हो गया, दूसरा नंबर x plus 18 हो गया. तो दोनों when we add both, we will get 92. x plus 18 is equal to 92. x plus x 2x plus 18 is equal to 92. प्लस 18 को उधर भेजेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा. तो 2x is equal to 92 minus 18 74. x is equal to 2, यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 74 divided by 2, x is equal to 37. Thus the required number are x is equal to 37 and x plus 18 is equal to 37 plus 18, that is 55. यानी एक नंबर 37 आया, दूसरा नंबर 37 से 18 ज़्यादा, यानी कि 55 आएगा. क्लियर? आई होप टू अंडरस्टैंड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. In this question it is said that if one out of the two number is thrice the other, मान लेते हैं one of the number be x, बोल रहा है तो दूसरा नंबर एक पहला नंबर का तिगुना है यानी थ्राइस है, तो 3x हो गया. ठीक है. इफ वन ऑफ द नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर विल बी 3x बिकॉज थ्राइस द नंबर इट इज सेड. ओके, तो दूसरा नंबर थ्राइस हो गया यानी कि 3x हो गया. अब बोल रहा है कि दोनों का सम 124 आ रहा है, तो फाइंड आउट द नंबर. तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 124, तो 4x इज इक्वल टू 124, तो x इज इक्वल टू 4 विल बी डिवाइडेड दैट साइड because it is multiplied here. So x is equal to 31, so the required number is x is equal to 31 and 3x is equal to 3 into 31, that is 93. Clear? Now listen, same way we can make the next question, that is question number 9. So I am not going to explain it here. Find in the question number 9, it is said that find two numbers such that one of them is 5 times the other. यानी यहाँ भी कहा जा रहा है कि दो नंबर निकालिए जिसमें कि एक नंबर दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, यानी कि वन ऑफ द नंबर बी x, देन अदर नंबर इज 5x. और उसके बाद बोलता है कि एंड इट्स डिफरेंस इज 132. इन प्लेस ऑफ सम वी विल डू हियर डिफरेंस. इन मीन्स 5x minus x is equal to 5x minus x is equal to 132. The equation of question number 9 will be made. Okay.
Now come to question number 10. In this question, it said the sum of two consecutive even number is 74. Suppose two consecutive even number is x and x plus 2. ध्यान देंगे, अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 4 होगा, तीसरा नंबर 6 होगा, यानी 2 2 2 नंबर इंक्रीज होता है। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 2 होना चाहिए। अगर पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 2 प्लस 2 होना चाहिए, तीसरा नंबर 2 प्लस 4 होना चाहिए। क्लियर? यानी x प्लस 2 होना चाहिए, दूसरा इवन नंबर x प्लस 2, तीसरा इवन नंबर x प्लस 4 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ दो ही कंसिक्यूटिव इवन नंबर बोला है तो x एंड x प्लस 2 विल बी देयर, x एंड प्लस x प्लस 2। उसके बाद बोलता है कि सम ऑफ द कंसिक्यूटिव इवन नंबर इज 74। तो दोनों का सम करेंगे, एक नंबर ये है, दूसरा कंसिक्यूटिव नंबर ये है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 74। वन वी सिंप्लीफाई दिस, x प्लस x 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 74। तो प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 72। 74 माइनस 2 72। x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 72/2 x इज इक्वल टू 36। Hence the required consecutive even numbers are x is equal to 36, x plus 2 is equal to 36 plus 2 is equal to 38। देखिए यहाँ 36, उसके बाद का इवन नंबर 32 आया ना, ठीक है? क्लियर? यहाँ पर इक्वेशन बना x प्लस x प्लस 2, ये दो कंसिक्यूटिव नंबर है, इसका सम 74 है। व्हेन वी सिंप्लीफाई वी गेट x इज इक्वल टू 36 and the required number is consecutive even number are x is equal to 36 and x plus 2 is equal to 36 plus 2 that is 38। तो दो consecutive number 36 और 38 आ गया। I hope you understand up to this question। Clear? समझ में आ गया सभी को? I hope you understand till now। In the question number 11, it is same as question number 10. Here two consecutive even number were given. In that question, 3 consecutive odd number is given। अगर एक x मानते हैं, दूसरा वहाँ भी x प्लस 2 मानेंगे, तीसरा x प्लस 4। अगर सपोज एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक नंबर 1 है तो उसमें 1 में 2 जोड़ेंगे तभी ना दूसरा ऑड नंबर आएगा, यानी 3। 1 में 4 जोड़ेंगे तब ना तीसरा ऑड नंबर आएगा 5। इसीलिए x है, दूसरा x प्लस 2 होगा, तीसरा वहाँ भी x प्लस 4 होगा। ऐसा दिमाग में मत रखिएगा कि ऑड नंबर है तो वहाँ पर 1 3 5 इस तरह का जोड़ेंगे, नहीं, क्योंकि 2 जोड़ने के बाद ही अगला ऑड नंबर आता है। इसीलिए x प्लस 2, तीसरा में x प्लस 2 प्लस 2 होता है, इसलिए x प्लस 4 डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है? तो x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4 होगा ऑड नंबर में, ठीक है? उसके बाद तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 74 दिया हुआ है, ठीक है? सॉरी 21 दिया हुआ है। हम सॉल्व करेंगे तो हम 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ऑड नंबर इसी प्रकार से निकाल लेंगे। क्लियर? आई होप यू मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो भी बताया मैं आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन व्हाट आई एक्सप्लेन फ्रॉम एक्सरसाइज 9C। सो I hope you completed up to exercise 11. Okay, thank you.